Hello everyone, welcome to today's class. In the previous lecture, we have already studied about the heart, how does the oxygenated blood go into the heart and how the deoxygenated blood goes out from the heart. We have already studied the working, the process, how does the heart work. Okay. Now we have already seen that our heart is four chambers. That is, we have four chambers. So the separation between the right side of the heart and left side of the heart, why is it necessary? What is the need? So this separation between the right side and the left side of the heart is necessary, is required because it prevents the mixing of the oxygenated and the deoxygenated blood. Okay, so such separation allows the separation of left and right side of heart. So this separation, such separation, it allows highly efficient supply of oxygen. So why is this separation required? Why is this separation needed? Because it allows highly efficient supply of oxygen. Okay, so this is useful. This highly efficient supply of oxygen is useful in animals that have high energy requirement. Okay, so ये जो highly efficient supply of oxygen है, ठीक है, जो supply of oxygen है, ये ज्यादा होना, efficient होना, किसमें useful है? This is useful in animals which have high energy needs or high energy requirements. Okay, for example, like birds and mammals, okay, which constantly use this energy to maintain their body temperature. Okay, so this is the process that takes place in such animals. Now, in animals that do not use large amount of energy, that do not use energy, for example, amphibians and reptiles. So in amphibians and reptiles, they have three chambers heart. Three chambers in heart. So these three chambers in heart, they allow some mixing of the oxygenated and deoxygenated blood. Okay, so some mixing, they can tolerate, these animals, these organisms, they can tolerate some mixing of the oxygenated and deoxygenated blood because their energy requirement is not very high. उन्हें बहुत ज्यादा energy requirement नहीं होती, इसलिए उनका हार्ट जो है वो थ्री चैम्बर होता है और ये थोड़ी बहुत ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग को टॉलरेट कर सकते हैं. नाउ ऑर्गेनिजम्स लाइक फिशेस, फिशेस में क्या होता है? दे हैव टू चैम्बर्स. ओके, मीन्स दो चैम्बर्स है. दैट मीन्स दैट ब्लड, what happens in these, the blood is pumped into gills. ब्लड जो है वो हार्ट से होता हुआ किसमें जाता है? गिल्स में. एंड गिल्स में it gets oxygenated there and the oxygenated blood directly goes into other body parts. मतलब कि जो ब्लड है, दैट, वो जो ब्लड है वो एक ही बार सिर्फ हार्ट में से जा रहा है. सो द ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट. सो इन फिशेस द ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट. फिशेस में ब्लड सिर्फ एक ही बार जाता है. ओके, एंड इन नेक्स्ट, नाउ इन वर्टिब्रेट, जैसे हमने ह्यूमन हार्ट का पढ़ा, ह्यूमन हार्ट में फोर चैम्बर्स होते हैं एंड हमने ऑलरेडी पढ़ा कि ब्लड जो है इट गोज ट्वाइस, दो बार जाता है फ्रॉम द हार्ट. सो इन वर्टिब्रेट्स, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स हैव फोर चैम्बर्स एंड द ब्लड गोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट. तो ब्लड जो है वो हार्ट में से दो बार जाता है, ट्वाइस थ्रू द हार्ट, एंड दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन. इसे क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन, जिसमें ब्लड दो बार हार्ट से होकर जाए. सो दिस इज हाउ द ऑक्सीजन एंटर्स इन द लंग.
ठीक है, कि कैसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग चैम्बर्स के हार्ट प्रेजेंट होते हैं जो उनके ऑक्सीजनेटेड ब्लड की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करते हैं। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द ट्यूब्स। अब ये जो ब्लड है इसे ट्रांसफर कौन करते हैं? इसे ट्रांसपोर्ट, ये जो ब्लड है इसे पूरी बॉडी में ट्रांसफर करती है, कुछ ट्यूब्स होती है, वो इस ब्लड को यहां से वहां से वहां लेकर जाती है। ओके, द ट्यूब्स। द ट्यूब्स, और उन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम ब्लड वेसल। उन्हें हम बोलते हैं ब्लड वेसल। वेसल मतलब कंटेनर, तो ब्लड का कंटेनर, ब्लड वेसल। सबसे पहले होती है आर्टरी। आर्टरी का क्या करती है? इट कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। ठीक है, हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को क्या करती है? वो कैरी करती है, लेकर जाती है। तब देखो हार्ट में से जो ब्लड आ रहा है दैट इज अंडर वेरी हाई प्रेशर, वो बहुत हाई प्रेशर ब्लड है। तो द ब्लड एमर्जिंग फ्रॉम हार्ट इज अंडर हाई प्रेशर, वो बहुत हाई प्रेशर ब्लड है। ठीक है, और उस हाई प्रेशर ब्लड को बॉडी पार्ट्स तक लेके जाना है। सो द वॉल्स ऑफ द आर्टरी आर थिक एंड इलास्टिक, ताकि क्या कर सके? वो जो ये हाई प्रेशर ब्लड है उसको बेयर कर सके, ठीक है, उसको बर्दाश्त कर सके। इसलिए जो आर्टरीज की वॉल्स होती है वो कैसी होती है? थिक होती है और इलास्टिक होती है। सो आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स है जो ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती है। नाउ वेन्स, सेकेंड, वेन्स क्या करती है? इट कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू द हार्ट। ठीक है, और ब्लड जो है वो इतना ज्यादा हाई प्रेशर में नहीं होता, द ब्लड इज अंडर लो प्रेशर, इसलिए जो वॉल्स ऑफ वेन्स होती है वो थिक और इलास्टिक नहीं होती। सो द वेन्स डू नॉट नीड थिक वॉल्स, वेन्स को थिक वॉल्स की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब जो आर्टरीज है वो डिवाइड होती है इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स में, स्मॉलर से स्मॉलर वेसल्स में, ट्यूब्स में डिवाइड होती है। और जो स्मॉलेस्ट वेसल है, द स्मॉलेस्ट वेसल दैट इज 1 सेल थिक, जिसकी थिकनेस कितनी है? इट इज मेड अप ऑफ 1 सेल। उसकी जो वॉल्स है वो कितनी थिक है? 1 सेल थिक वॉल्स। जिसकी वॉल्स की थिकनेस कितनी? 1 सेल, मतलब बहुत ही थिन, बहुत ही स्मॉल। दैट वेसल्स आर नोन एज द थर्ड टाइप ऑफ वेसल्स विच आर कैपिलरीज। उसे क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। फर्स्ट इज द आर्टरी, सेकेंड वेन, एंड द थर्ड जो स्मॉलेस्ट वेसल होती है उसे क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। तो जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स है बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स वो कहां पर होता है? कैपिलरीज में। द एक्सचेंज of materials between blood and surrounding cells, तो वो कहां पर होता है? कैपिलरीज में। द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स। और ये जो कैपिलरीज है ये जब जॉइन टुगेदर, दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स। तो कैपिलरीज जॉइन टुगेदर होती है और क्या बनती है? वेन्स। सो दीज आर द ट्यूब्स, द वेसल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द ब्लड प्रेशर। नाउ व्हाट इज द ब्लड प्रेशर? जो हम बोल रहे हैं ना कि ब्लड इज अंडर हाई प्रेशर, ब्लड इज अंडर लो प्रेशर, तो ये ब्लड प्रेशर है क्या? द ब्लड प्रेशर। सो व्हाट इज दिस ब्लड प्रेशर? ठीक है, तो ब्लड प्रेशर क्या है? दैट इज द फोर्स दैट द ब्लड exerts against the walls of the vessels. Okay, the force that blood exerts against the walls of vessels. ठीक है, जो ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे, जैसे ये ब्लड वेसल्स है तो इसकी वॉल्स पे जो ब्लड प्रेशर एक्सर्ट करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। ओके,
ये प्रेशर जो है वो आर्टरीज में ज्यादा होता है और वेन्स में कम होता है. सो द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी, द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी, कब आर्टरी में जो प्रेशर ऑफ ब्लड है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब क्या है इसका, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल. वेंट्रिकुलर सिस्टोल का क्या मतलब कॉन्ट्रैक्शन. तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, जब आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, जब आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उस टाइम पे जो ब्लड का प्रेशर होता है इनसाइड द आर्टरी, दैट इज नोन एज द सिस्टोलिक प्रेशर. उसे क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर. और आइडियल केस में कितना होता है, 120 mm ऑफ मर्क्यूरी. ठीक है, प्रेशर की ऐसा यूनिट है, प्रेशर को मेजर करते हैं इन मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. सो कितना होता है, mm ऑफ मर्क्यूरी. तो जब आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करती है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, प्रेशर ऑफ ब्लड उसमें कितना होता है. जब आर्टरीज रिलैक्स करेंगी, तो ड्यूरिंग रिलैक्सेशन उसे बोलते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल. मतलब जब आर्टरीज रिलैक्स करेगी ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, दैट इज नोन एज डायस्टोलिक प्रेशर. एंड इन आइडियल केस दैट इज 80 mm ऑफ मर्क्यूरी. ओके, तो दो टाइप के प्रेशर होते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर. देखा होगा किसी का ब्लड प्रेशर लिखा हुआ 120/80, ऐसे लिखते हैं ब्लड प्रेशर. तो 120 क्या है, जब आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो प्रेशर, तो उसमें ब्लड प्रेशर कितना है, और जब आर्टरीज रिलैक्स करती है तब उसमें प्रेशर कितना है. ठीक है, तो ऐसे लिखा जाता है. द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड, द प्रेशर ऑफ ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से, दैट इज नोन एज स्फिग्मोमैनोमीटर. स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं. ठीक है, एक ऐसा डिवाइस होता है, उसमें ऐसा एक पफ होता है. ठीक है, तो उसका जो कप है उसे उसमें एयर फिल करते हैं. जब उसमें एयर फिल करते हैं, ठीक है, तो जो प्रेशर है वो कप में क्या हो जाता है, 120 से ज्यादा हो जाता है. मतलब वो क्या करता है, आर्टरीज को कॉन्ट्रैक्ट करता है. ठीक है, फिर उसको रिलीज करते हैं तो प्रेशर 120 के नीचे आता है. तो उससे डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो मेजर किया जाता है. अगर हाई ब्लड प्रेशर है, सो हाई ब्लड प्रेशर इज नोन एज हाइपरटेंशन. उसे क्या बोलते हैं, इट इज हाइपरटेंशन. और इसका कॉज क्या है, व्हाट इज द कॉज, द कॉज ऑफ हाइपरटेंशन इज कॉन्स्ट्रिक्शन. कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब रुकावट. तो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज में किसी तरह का कॉन्स्ट्रिक्शन है, कोई रुकावट है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज रेजिस्टेंस इन ब्लड फ्लो. जो ब्लड फ्लो है उसमें क्या हो गया है, इंक्रीज रेजिस्टेंस हो गया है. और इसकी वजह से क्या हो सकता है, आर्टरी जो है वो रप्चर हो सकती है. अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, मतलब ब्लड उसकी वॉल्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो वॉल क्या हो सकती है, ब्रेक हो सकती है, बर्स्ट हो सकती है, रप्चर हो सकती है आर्टरी, जिसकी वजह से क्या हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग. Okay, so this is blood pressure. Now is maintenance by platelets. What are platelets and what maintenance purpose do they do? So what happens when we are injured? We start bleeding. हमें bleeding होने लग जाती है, मतलब blood निकलने लग जाता है. So this loss of blood, so this loss of blood from the system has to be minimized. ठीक है, इसे मिनिमाइज करना बहुत जरूरी है. क्यों जरूरी है, लॉस ऑफ ब्लड हम हमारी बॉडी बेयर क्यों नहीं कर सकती, क्यों इसे मिनिमाइज करना जरूरी है, बिकॉज क्या होता है, इस लीकेज की वजह से जो ब्लड हमारी बॉडी में से लीक हो रहा है, इस लीकेज की वजह से जो ब्लड का प्रेशर है, ठीक है, हमने पढ़ा है कि हार्ट जब ब्लड पंप करता है तो वो कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स. तो ये जो ब्लड का प्रेशर है, वो प्रेशर में क्या होता है, लॉस होता है. देयर इज ए लॉस ऑफ प्रेशर. प्रेशर जो है वो हमारी बॉडी में फ्लक्चुएट हो जाता है, कम हो जाता है. एंड दिस ड्यू टू दिस इट रिड्यूसेस
द एफिशिएंसी ऑफ आवर पंपिंग सिस्टम, हमारा जो पंपिंग सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, ठीक है। एंड दिस इज नॉट अ गुड न्यूज कि उसकी एफिशिएंसी कम हो पंपिंग सिस्टम की। सो दैट इज द रीजन कि ये जो लीकेज है, जो ब्लड लॉस है, उसे क्या करना जरूरी है, इसे मिनिमाइज करना जरूरी है। सो टू अवॉइड दिस, इसे अवॉइड करने के लिए ब्लड के अंदर कुछ प्लेटलेट सेल्स होते हैं। सो टू अवॉइड दिस ब्लड हैज प्लेटलेट सेल्स, ब्लड के अंदर क्या होते हैं, कुछ प्लेटलेट सेल्स होते हैं। अब ये प्लेटलेट सेल्स का काम क्या है, ये क्या करते हैं, ये पूरी बॉडी में, हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हैं, ठीक है, विच सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी, हमारी पूरी बॉडी के अंदर घूमते हैं, ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर होते हैं। तो इन प्लेटलेट सेल्स का काम क्या होता है कि जब भी हमें इंजरी होती है और ब्लड निकलता है तो ये क्या करते हैं कि वो जो लीकेज है उन्हें क्या करते हैं, प्लग कर देते हैं। जैसे अगर कहीं से पानी लीक हो रहा है तो हम क्या करते हैं, उस पे एमसी लगा देते हैं, तो क्या करते हैं, पानी की लीकेज को प्लग कर देता है। सो सिमिलरली जो प्लेटलेट है वो क्या करते हैं, दे प्लग द लीक्स, जो लीक्स है, जो लीकेज है उसे क्या कर देते हैं, वो प्लग कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हेल्पिंग इन ब्लड क्लॉट, इसकी वजह से ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है, जम जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, ठीक है, वहीं पे जम जाता है। तो दिस इज द मेंटेनेंस विच इज डन बाय द प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स होते हैं और ये प्लेटलेट्स का काम होता है, ठीक है, दिस इज द वर्क। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लिम्फ। Next topic is lymph. So the another type of fluid which is involved in transportation is lymph. ठीक है, एक और fluid है जो transportation के process में involved है, उसे क्या बोलते हैं, lymph बोलते हैं। So what happens through the pores present in the walls of capillaries, ठीक है, through the pores present in the walls of कैपिलरीज, कैपिलरीज की जो वॉल्स है उनमें क्या होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स नहीं बोल सकते, पोर्स होते हैं, ठीक है। तो इन पोर्स से क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन और जो ब्लड सेल्स है वो ब्लड के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस में क्या हो जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं। सो थ्रू द पोर्स सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन, ठीक है, एंड ब्लड सेल्स एस्केप, उसमें से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। जैसे ये कैपिलरीज है, कैपिलरीज के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है और ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है, कुछ प्रोटीन, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स इसमें ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। अब कैपिलरीज में जो पोर्स है उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन और ये सब क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं, ठीक है। जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है टिश्यू में, एस्केप इन द इंटरसेल्युलर स्पेसेस, सेल के बीच में, इंटरसेल्युलर मींस सेल के बीच में, तो इंटरसेल्युलर स्पेसेस जो है, एस्केप इन द इंटरसेल्युलर स्पेसेस इन टिश्यूज, टिश्यूज के अंदर जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस है उसमें क्या हो जाते हैं, वो एस्केप कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और क्या फॉर्म हो जाते हैं, टू फॉर्म लिम्फ, बाहर आके वो क्या बन जाते हैं, लिम्फ बन जाते हैं, ठीक है। तो यही प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स जो है यही कन्वर्ट होके किसमें बन रहे हैं, इनटू लिम्फ, और इसे और क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज टिश्यू फ्लूइड। तो यही कन्वर्ट होकर लिम्फ या व्हाट वी कॉल टिश्यू फ्लूइड वो बनते हैं। सो टिश्यू फ्लूइड जो लिम्फ जो है, इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा, प्लाज्मा जैसे होता है बट इट इज कलरलेस होता है एंड इट कंटेन्स लेस प्रोटीन, उसमें प्रोटीन का जो अमाउंट है वो कम होता है, ठीक है। अब ये जो लिम्फ है ये कहां पर ड्रेन करता है, ये सारा जो लिम्फ जो बना है वो कहां जाता है, इट ड्रेन्स इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फ ड्रेन्स मतलब जा रहा है, कहां जा रहा है, इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज, ठीक है। जो छोटी छोटी कैपिलरीज है, लिम्फेटिक कैपिलरीज है, उसमें जा रहा है। हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जो कैपिलरीज है दे जॉइन टू बिकम लार्ज वेन्स, तो जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है, ठीक है, वो ज्वाइन होती है टू बिकम लार्ज वेसल्स
large lymph vessels, and large lymph vessels finally open into large veins. ठीक है, so जो lymphatic capillaries है, they join to form large lymph vessels, and large lymph vessels open into large veins. Okay, नाउ लिम्फ जो है वो क्या कैरी करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन, अभी हमने पढ़ा कि लिम्फ क्या है, एक ट्रांसपोर्टेशन, ये भी क्या है, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का पार्ट है। तो लिम्फ ट्रांसपोर्टेशन कैसे करता है, क्या करता है वो, सो व्हाट डज लिम्फ डू, लिम्फ कैरीज, ठीक है, लिम्फ क्या कैरी करता है, द डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट्स, ठीक है, जो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट्स होते हैं, द डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में से जो डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट्स है उससे क्या करता है, लिम्फ कैरी करता है। सो इन दिस मैनर हमने जो बोला कि इट इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड विच इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, तो ऐसे ये ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है। ओके, सो दिस इज ऑल विथ टुडेज क्लास।